سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت کرو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ، بیان اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے، اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں۔ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے گھر تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو، اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت بہو، بلکہ خود کو ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فن پارہ ہے، جس کی تکمیل کے لیے خدا ہر انسان کے ساتھ داخلی اور خارجی طور پر مصروف کار ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ایک بے حد لطیف اور نفیس مصوری کا شاہکار ہے، جس پر ثبت کیا جانے والا ہر ایک نقطہ پوری تصویر کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت۔ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کی مانند شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی۔ دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں۔ عقل آسانی سے اپنا آپ فراموش نہیں کرتی،
जबकि इश्क तो बिखर जाने और फना हो जाने के लिए हमा वक्त तैयार है। और खजाने भी तो वीरानों में मिलते हैं, एक शकिस्ता दिल में ही तो खजाना मदफून होता है। सब्र इस बात का नाम नहीं है कि इंसान उज़्वे मुअत्तल होकर बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुजरता रहे, बल्कि सब्र का मतलब यह है कि इंसान इतना दूर अंदेश और वसी निगाह का हामिल हो कि मामलात के अंजाम पर नजर रखते हुए रब पर भरोसा रखे। सब्र क्या है? सब्र यह है कि जब तुम कांटे को देखो तो तुम्हें फूल भी दिखाई दे, जब रात के घुप अंधेरे पर नजर पड़े तो उसमें सुबह सादिक का उजाला भी दिखाई दे। बेसब्री यह है कि इंसान इतना कोताबीन और कम नजर हो कि मामले के अंजाम पर नजर डालने से कासिर रह जाए। आशिकाने इलाही सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहली के बारीक चांद को माहे कामिल में तब्दील होने के लिए कुछ वक्त जरूर गुजरना पड़ता है। जिस तरह एक मां को बच्चे की पैदाइश के लिए दर्द कर्ब के मरहले से गुजरना पड़ता है, इसी तरह एक नई शख्सियत को जन्म देने के लिए तकलीफ जरूर उठानी पड़ती है। जिस तरह एक दिन को अपनी रोशनी पूरी शिद्दत के साथ बखेरने के लिए शदीद गर्मी और हिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसी तरह मोहब्बत भी दुख और दर्द के बगैर तकमील को नहीं पहुंच सकती। तन्हाई और खलबत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब हम तन्हा और अकेले होते हैं तो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाना बहुत आसान हो जाता है कि हम सीधे रास्ते पर हैं, लेकिन खलवत यही है कि आदमी तन्हा होते हुए भी तन्हा ना हो। बेहतर है कि हमारी तन्हाई किसी ऐसे शख्स के दम कदम से आबाद हो जो हमारे लिए एक बेहतरीन आईने की हैसियत रखता हो। याद रखो कि सिर्फ किसी दूसरे इंसान के दिल में ही तुम अपना दुरुस्त अक्स देख सकते हो, और तुम्हारी शख्सियत में खुदा ने जिस मखसूस जलवे का ज़हूर हो रहा है वो सिर्फ किसी दूसरे इंसान के आईनाए क़ल्ब में तुम्हें दिखाई देगा। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सफर की सिमत कोई भी हो, बस ये ध्यान जरूर रहे कि हर सफर जात का दाखिली सफर जरूर बने। अगर तुम अपनी जात के अंदरून में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक बातनी सफर करो तो तुम्हारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ इससे मारवा है वो भी शरीके सफर हो जाते हैं। अगर तुम अपना ईमान मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अंदर की सख्ती दूर करना होगी। चट्टान की तरह मजबूत ईमान के लिए किसी परिंदे के परों से भी ज्यादा नरम दिल दरकार है। जिंदगी में बीमारियां, हादसात, नुकसान, तमन्नाओं का टूटना और इस किस्म के कई दीगर मामलात हमारे साथ इसीलिए पेश आते हैं ताकि हमें रख्ते कल्ब अता कर दें, हमें खुद गर्जियों से निकालें, नुक्ता चीनी के रवैये तब्दील करें और हमें कुशादा दिली सिखाएं। कुछ लोग तो सबक सीखकर नरम हो जाते हैं और कुछ लोग पहले से भी ज्यादा सख्त मिजाज और तल्ख हो जाते हैं। हक ताला के करीब होने के लिए जरूरी है कि हमारे कुलूब इतने कुशादा हों कि तमाम इंसानियत इसमें समा सके और इसके बाद भी इनमें मजीद मोहब्बत की गुंजाइश बाकी रहे। असल नापाकी तो अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। गर्दो गुबार की बस एक ही किस्म है जो पाकीज़ा पानी से साफ नहीं हो पाती, और वो है नफरत और ताज्जुब के धब्बे जो रूह को आलूदा कर देते हैं। तुम तर्के दुनिया से और रोजे रखने से अपने बदन को तज़किया तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कल्ब का तज़किया सिर्फ मोहब्बत से ही होगा। जब उसका सच्चा चाहने वाला कभी मैकदे में जा पहुंचे तो वो मैकदा
اس کے لیے محراب و مصلی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بہکا ہوا میخوار مسجد میں بھی چلا جائے تو وہ اس کے لیے میخانہ بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہے، ہمارے اندر کا ہے، ظاہر کا نہیں۔ صوفی لوگوں کو ان کے حلیے اور ان کی وضاقتہ سے نہیں جانچتے۔ جب ایک صوفی کسی پر نگاہ جماتا ہے تو وہ دراصل اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر چکا ہوتا ہے اور ایک تیسری آنکھ سے جو اس کے قلب میں ہے اس منظر کے اندر کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یکتا ممتاز ہیں۔ کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں، کوئی بھی دو دل یکساں طور پر نہیں دھڑکتے۔ اگر وہ چاہتا تو سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو وہ ان کو ایک جیسا ہی بناتا۔ چنانچہ اب ان اختلافات کی توہین و تنفیذ کرنا اور اپنے افکار کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا دراصل پروردگار عالم کو قضاء و قدر اور بلند پایا حکمت کی توہین کے مترادف ہے۔ سر تسلیم خم کرنے اور راضی بالرضا رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے عمل ہو کر عضو معطل ہو جائیں، اور نہ ہی یہ جبریت یا تعطیل ہے، بلکہ یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل قوت تسلیم و رضا میں ہے، ایسی قوت جو ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں وہ ایسے دائمی سکون اور سکنیت میں رہتے ہیں کہ اگر سارا جہان موج در موج فتنوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس سکون میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ اس دنیا میں جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی جدوجہد کرتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ ایک دن اسے یہیں چھوڑنا ہے، ایسے میں تم صرف اور صرف نایافت اور نیستی کو اپنا مقدر قرار دو۔ زندگی میں اتنے سبک بن جاؤ جتنا کہ صفر کا ہنسا ہوتا ہے۔ ہم ایک برتن کی طرح ہیں، برتن پر خواہ کتنے ہی نقش و نگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کا کارآمد ہونا صرف اس خاکی وجہ سے ہے جو اس کے اندر ہے۔ یہ خلا ہی اسے برتن بناتا ہے، اور یہی نایافت اور خلا ہمیں بھی درست رکھتے ہیں۔ کسی مقصد کا حصول ہمیں متحرک نہیں رکھتا، بلکہ یہی خالی پن کا شعور ہے جو ہمیں رواں دواں رکھتا ہے۔ خدا بہت باریک بین اور بڑا ہی کاریگر گھڑی ساز ہے، اتنا درست کہ زمین پر ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر وقوع پذیر ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے، اور یہ عظیم گھڑی بغیر کسی استثناء کے سبھی کے لیے بالکل ٹھیک اور درست طور پر قائم کرتی ہے۔ ہر ایک کے لیے محبت اور موت ایک لمحہ مقرر ہے۔ پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تم اور تمہارے ارد گرد جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمام چیزیں خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، تمام لوگ خواہ تم ان کے لیے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت، یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے۔ چنانچہ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ اگر تم پوری محنت اور دیانت سے کبھی اپنی ذات کے روشن اور تاریک گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم ایک عظیم اور برتر شعور کا دریچہ کھلے گا۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے۔ ماضی ایک تعبیر ہے، ایک نقطہ نظر ہے، جبکہ مستقبل مایا ہے، ایک سراب ہے۔ دنیا ایک خط مستقیم کی شکل میں وقت کے دھارے میں سے نہیں گزرتی،
जो माजी से मुस्तकबिल की तरफ जा रहा हो, बल्कि वक्त हमारे अंदर से बतदरीज फैलती हुई लामतनाही कौसों की सूरत में गुजरता है। अबदियत लामहदूद वक्त को नहीं बल्कि वक्त से मारवा होने का नाम है। अगर तुम अबदी रोशनी के हामिल होना चाहते हो तो माजी और मुस्तकबिल को अपने जहन से निकाल दो और फकत लम्हाए मौजूद में बाकी रहो। ये लम्हाए मौजूद ही सब कुछ था और सब कुछ है और हमेशा रहेगा। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों ना लगने लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब भी खुदाबंद करीम अपने बंदे के लिए कोई ना कोई नई राह जरूर खोल देता है। हर हाल में शुक्र करो। जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो उस वक्त शुक्र करना बहुत आसान है, लेकिन एक सूफी ना सिर्फ इन बातों पर शुक्रगुजार होता है जिनमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुजरे, बल्कि उन तमाम बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिनसे उसे महरूम रखा गया हो। अता हो या मना, हर हाल में शुक्र। कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फहमो इदराक गहराई के मुताबिक ही समझ पाता है। कुरान की फहम की 4 दर्जात हैं। पहला दर्जा ज़ाहिरी मानी है और ज़्यादातर अक्सरियत इसी पर कनात किए हुए हैं। दूसरा दर्जा बातनी मानी का है। तीसरा दर्जा इन बातनी मानों का बतन और चौथा दर्जा इस कदर रमीक मायनों का हामिल है कि ज़बान उनके बयान पर कादिर नहीं हो सकती। चुनाचे ये नाकाबिले बयान है। उलमा फुक़हा जो शरीयत के अहकामात पर गौर व गौस करते रहते हैं, एक बुलंद व बरतर ज़ात और हर तरह की नुक्स से पाक खुदा से मोहब्बत करना बज़ाहिर तो आसान सी बात मालूम होती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मुश्किल बात यह है कि इंसान अपने इब्नाए जिन से मोहब्बत करे जिनमें हर तरह की कमजोरियां और खामियां पाई जाती हैं। याद रखो कि इंसान इसी को जान सकता है जिससे वो मोहब्बत करने पर कादिर हो। मोहब्बत के बगैर कोई मार्फत नहीं होती। जब तक हम अल्लाह की तख्लीक से मोहब्बत करना नहीं सीखते तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सके और उसको जान पाए। जन्नत और दोज़ख के बारे में फिक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही हैं, इसी लम्हाए मौजूद में। जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं जन्नत का एक जीना तय करते हैं, और जब भी हम नफरत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं दोज़ख की लपेटों की जद में होते हैं। क्या इससे भी बदतर कोई दोज़ख हो सकता है? जब कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में ये एहसास पाए कि उससे कोई बेहद गलत और बुरा काम सरजद हो गया है, उस शख्स से पूछ कर देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोज़ख किसे कहते हैं। और क्या इससे बड़ी भी कोई जन्नत हो सकती है जब किसी शख्स पर खास लम्हात में वो सकनियत नाजिल हो जब उस पर कायनात के दरीचे कुशादा होते हैं और इंसान अपने रब के साथ कुर्ब की हालत में अबदियत के असरार से हमकनार होता है। पूछो उस शख्स से, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। मोहब्बत की तलाश हमें तब्दील करके रख देती है। राहे इश्क में ऐसा कोई मुसाफिर नहीं गुजरा जिसे इस राह ने कुछ ना कुछ पुख्तगी ना अता की हो। जिस लम्हे तुम मोहब्बत की तलाश का सफर शुरू करते हो, तुम्हारा जाहिर और बातिन तब्दीली के अमल से गुजरना शुरू हो जाता है। परवरदिगार की सल्तनत में इंसान को बहुत खास मुकाम और मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने कहा, और मैंने उसके अंदर अपनी रूह में से फूंक दिया। हम में से हर एक को एक काबिलियत के साथ पैदा किया गया है कि वो उसका खलीफा बन सके। अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे आमाल उसके खलीफा जैसे हैं? याद रखो कि हम पर लाजिम है कि हम
उस रहमानी रूह को जो हम में फूंकी गई है को अपने अंदर दरियाफ्त करें, पहचानें और उसके साथ जिएं। इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, यकसानियत और हमवारियत हमें आगे लेकर नहीं जाती, बल्कि मुखालफत और तजाद आगे लेकर जाता है। और दुनिया में जितने भी मुतजाद अमूर हैं, वो सब हम में से हर एक के अंदर भी पाए जाते हैं। चुनाचे एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर के काफिर से ज़रूर मिले, और एक काफिर को भी अपने अंदर के खामोश मोमिन को दरियाफ्त करना चाहिए। ईमान एक तदरीजी सफ़र है जिसके लिए उसके मुखालिफ यानी बेयकीनी का होना लाजिम है, तब वक्त ये कि इंसान कामिल के मुकाम तक जा पहुंचे। ये दुनिया उस बर्फानी पहाड़ की तरह है जहां बुलंद की गई हर आवाज पहाड़ों से टकराकर बाज़गश्त की सूरत में वापस हम तक पहुंचती है। जब भी तुम कोई अच्छी या बुरी बात करोगे, तुम तक वापस जरूर पलट कर आएगी। चुनाचे अब अगर तुम किसी ऐसे शख्स के लिए बुरे कलमात मुंह से निकालो जो हर वक्त तुम्हारा बुरा सोचता रहता है, तो ये इस मामले को और भी गंभीर बना देगा और तुम मनफी कुव्वतों के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में घूमते रहोगे। बजाय इसके कि तुम इसके लिए कुछ बुरा कहो, 40 दिन तक इसके लिए अच्छा सोचो और अच्छी बात मुंह से निकालो। तुम देखना कि 40 दिन बाद हर शय मुख्तलिफ महसूस होगी, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे और अंदर से तब्दील हो गए। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अपने बर्ताव और रवैये को तब्दील कर दें, तो इसके लिए पहले तुम्हें उस रवैये को तब्दील करना होगा जो तुम अपने आप के साथ रवा रखते हो। जब तक तुम अपने आप से पूरे खुलूस से और पूरी तरह मोहब्बत करना नहीं सीखते, बहुत मुश्किल है कि तुम्हें मोहब्बत नसीब हो। और जब यह मर्तबा हासिल हो जाए तो फिर उस कांटे के लिए भी शुक्रगुजार हो जो तुम्हारे रास्ते में फेंका जाए, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि तुम पर अनकरीब फूल भी निछावर होंगे। कोई इमाम, कोई पादरी, कोई रब्बी और इखलाकी और मजहबी कायदीन में से कोई भी तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच हाइल नहीं होना चाहिए, हत्ता कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा रूहानी मुर्शिद भी नहीं। अपने इक़दार और उसूलों पर ज़रूर यकीन रखो, लेकिन उनको दूसरों पर मुसल्लत मत करो। अगर तुम लोगों के दिलों को तोड़ते रहो और कोई भी मजहबी फरीज़ा अंजाम देना तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं, हर किस्म की बुत परस्ती से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारी रूहानी बेनाई को धुंधला देगी। सिर्फ अपने रब को अपना मुर्शिद हकीकी समझो। इल्म और मारफत ज़रूर हासिल करो, लेकिन उन उलूम व मुआरिफ को अपनी ज़िंदगी का मकसद मत बनाओ। जुज़्व तब्दील होता रहता है, लेकिन उसका कुल वैसे का वैसे रहता है। दुनिया से जब भी कोई चोर डाकू रुखसत होता है, उसकी जगह लेने के लिए एक नया शख्स पैदा कर दिया जाता है और हर साले और वली उसकी जगह संभाल लेता है। इस तरीके से बैक वक्त हर शय तब्दील हो जाती है, लेकिन मजमूई हकीकत में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। मोहब्बत के बगैर जिंदगी बेमायनी है। मत सोचो कि मुझे किस किस्म की मोहब्बत की तलाश है, रूहानी या जिस्मानी, मलकूती या नासूती, मशरकी या मगरबी। मोहब्बत की यह तकसीम मजीद तकसीम पैदा करती है। मोहब्बत का कोई उन्वान नहीं होता, ना ही कोई मखसूस तारीफ। ये तो एक सादा और खालिस चीज़ है बस। मोहब्बत आब हयात भी है और आतिश की रूह भी है। जब आतिश आब से मोहब्बत करती है तो कायनात एक मुख्तलिफ रूप और नए अंदाज में ज़हू पजीर होती है। कायनात एक वजूद वाहिद है। यहाँ हर कोई अपने अपने वाक़यात के गैर मरई धागों से एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ है। हम सब जाने अनजाने में एक खामोश मुकालमे का हिस्सा हैं। किसी को दुख न दो, नरमी और शफकत का बर्ताव रखो,
किसी की पीठ पीछ उसकी बुराई मत करो, ख्वाह एक ही है, जरर सा जुमला ही क्यों ना हो। अल्फाज जो एक बार हमारी जबानों से निकल आते हैं वो कभी फना नहीं होते, बल्कि एक लामहदूद वसअत में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं और अपने मुकर्रर वक्त में वापसी हम तक आन पहुंचते हैं। बिलाखिर किसी भी आदमी की तकलीफ हम सबको एक इज्तमाई दुख में मुब्तला कर जाएगी और किसी भी आदमी की खुशी हम सबके होंठों पर मुस्कान का बाइस बनेगी। दुनिया अमल और उसके रद्द अमल के उसूल पर कायम है। नेकी का एक कतरा या बुराई का एक जर्रा भी अपना रद्द अमल या नतीजा पैदा किए बगैर नहीं रहता। लोगों की साजिशों, धोखाधड़ियों और चालबाजियों का खौफ मत खाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए जाल तैयार कर रहा है तो याद रखो कि अल्लाह भी खैरुल माकिरीन है और सबसे अच्छा मंसूबा साज है। एक पत्ता भी उसके इल्म और इजाजत के बगैर नहीं हिलता। बस अल्लाह पर सादगी के साथ और पूरी तरह यकीन रखो, वो जो कुछ भी करता है बहुत खूबसूरत तरीके से करता है। कोई हर्ज नहीं अगर जिंदगी के किसी भी मरहले में हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, क्या मैं अपना तर्ज जिंदगी और अपनी रविश बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपना आप बदलने के लिए तैयार हूं? अगर दुनिया में हमारी जिंदगी का एक दिन भी गुजरते हुए दिन के मुसावी गुजरे तो बड़ी हसरत का मुकाम है। हर लम्हा, हर आन और हर सांस के साथ हमें अपनी तजदीद करते रहना चाहिए, नया जन्म लेते रहना चाहिए। और नया जन्म लेने के लिए एक ही तरीका है, मौत से पहले मर जाना। जिंदगी तो एक उधार की मानिंद नापायदार है और असल हकीकत का एक धुंधला सा खाका और नकल। सिर्फ बच्चे ही असल हकीकत की बजाय खिलौनों से बहलते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग खिलौनों पर फरिश्ता होते हैं या बेकदरी से उन्हें तोड़ डालते हैं। इस जिंदगी में हर किस्म की इंतहाओं से दूर रहो, क्योंकि इंतहा पसंदी तुम्हारे अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। सूफी अपने रवैयों में इंतहा पसंद नहीं होते, बल्कि मतवाज़न और नर्म होते हैं। सच्चा सूफी ऐसा फर्द है कि अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर सिमत से उस पर मलामत की बौछार हो, तब भी वो सब्र के साथ ये सब झेलता है और तनकीद करने वालों के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालता। वो इल्जाम के जवाब में इल्जाम नहीं लगाता और कोई उसका मुखालिफ और दुश्मन हत्ता के गैर हो भी कैसे सकता है जब उसके नजदीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं। वो तो खुद अपने नफ्स से मौदूम है, चुनाचे वो किस तरह किसी को अपना दुश्मन या मुखालिफ समझे जब वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद सात की जलवा नुमाई है। तकदीर का यह मतलब नहीं कि तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोई कोशिश ना करना महज जहालत की अलामत है। कायनाती मौसीकी हर तरफ से फूट रही है और उसके 40 मुख्तलिफ दर्जात हैं। तुम्हारा मुकद्दर वो दर्जा है जिस पर तुम अपना साज बजा रहे हो सकता है कि तुम्हारा मुआजना ना किया जा सके, लेकिन इस साज से जो नगमा और जो धुन तुम निकालते हो उसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तुम पर है।